Morning student, let's start today's assignment in an enthusiastic way. Let's look at the recap of what we did. So dear students, we able to recognize the base that regional events we wanted to prepare for the examination, that is German level examination, and safe and secure environment was given for the safe conduction of examination. Everything was done, examination was over, and things became very negative when citizens had observed events held after examination. When we wanted to just move towards a canteen for a cup of coffee. I think you are crystal clear up to this particular point. There is no doubt in that, dear students. So इस पॉइंट तक सबको क्लियर हो चुका है कि एक प्रिज्म एग्जाम के लिए अपेयर होने जा रहा था and how he was not able to uh, look at the scene very different. तो यहाँ पे जो एग्जाम के लिए वो अपेयर हुआ था things became very negative क्योंकि लास्ट स्टेज जो थी पेपर की ऑब्जर्वेशन के कारण everything was in critical. So let us move. तो यहाँ हमने ये देखा था कि पूरी प्रिजन में everything was in negative order at that moment. सायरन बज गए, दरवाजे बंद कर दिए गए because the things were very critical at that particular moment. And you will have to look at the step that is next step was we already did a police detective superintendent Carter just discussing. और वो कह रहा है कि इतना नेगेटिव साइन कैसे हो गया ही वाज जस्ट हाईलाइटिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन अ वेरी डिफरेंट ऑर्डर तो वो हाईलाइट कर रहा था लास्ट में ये पॉइंट कि ये नेगेटिविटी इतनी भारी जो अटैक इतना भारी एक्सीडेंट उसका टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर डिफरेंट ऑर्डर इट्स वेरी इरिटेटेड so even governor was very irritated to observe that particular point. The governor was looking at each and everything in a very negative order at that particular moment. जबकि गवर्नर के पर्सनली केयर करने के बावजूद भी the things became very negative. So the reason for the negativity was you should be able to look at the over cleverness of events. जो भी हुआ था सब negative point was created by a very shrewd personality. That is events. तो उस पॉइंट पे जाके जब उनको पता चला गवर्नर को कि things had become very negative automatically. So we have to be in continuity. हमने देखा था कि उसने examination slip थी that was pasted and उस पर लिखा हुआ था कि इस रास्ते से यहाँ गया होगा should be able to look at things. So now let us look at this particular sentence. Take him with you if you think he will be all right. He's the only one who seems to know what's happening. अब एक गवर्नर इंस्ट्रक्ट कर रहा है किसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है यानी कार्टर तो पुलिस डिटेक्टिव कार्टर को कि इसको साथ में ले जाओ कि यही बंदा है जो जानता है कि कहाँ इवेंट्स क्या यानी जो इंजर्ड स्टेट में पर्सन होता है उसको साथ में ले जाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है कार्टर कार्टर बैक डोर खोलता है और उसको
and he wanted to take that fellow with him to look at the thing already waiting. So now look at the next point. रास्ते में जा रहे हैं, किस रास्ते में जा रहे हैं? एल्सफील्ड में क्यों जा रहे थे? क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड का जो ऑफिस वही था, तो वही गया होगा, क्योंकि सारी चीजें वही से नेगेटिव उठी हैं. Wanted to highlight that particular point. So now just look at this particular dialogue. The governor turned to Jackson and Stephen. अब यहाँ पे we are able to look at the next episode. Just the governor was irritated to look at the behavior or the negativity or the negligence of these two officers, that is Jackson and Stephen. अब यहाँ पे उनको डांटेंगे. Governor was very irritated. 83 page की last जो paragraph है, you should be able to switch on to that. The governor turned to Jackson and Stephen. I don't need to tell you what's happened. Why? तो मुझे कहने की जरूरत है क्या हुआ? Wanted to highlight that negativity of extreme level was it. हाईलाइट कर रहे हैं गवर्नर जी की इतना इतना नेगेटिव एटीट्यूड, इतना नेग्लिजेंस ड्यूटी. वांटेड टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि आप लोगों ने क्या ड्यूटी की है. आप लोगों को मैंने अलर्ट किया था, बट यू डिड द थिंग्स इन अ वेरी नेगेटिव वे. आपने जो असाइनमेंट आपको दिया था इट वाज नॉट डन इन अ प्रॉपर वे. तो यहाँ पे हम जिस तो हम एपिसोड कर रहे हैं, वी आर एबल टू लुक एट the arrogant attitude of this particular fellow, that is governor. कि क्या काम किया तुमने? Almost calm in its scathing content. Note down the meaning of scathing. गलतियों को बोला जाता है, mistakes को बोला जाता है. तो contempt का इस text के accordingly जो meaning है, इसका मतलब हद से ज्यादा आपने गलती की. यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं गवर्नर जी इनको, जो दो प्रिजन ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे कि दे शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, दे शुड बी विजिलेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आवर्स. Which one of you morons was it who took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him bye bye? यहाँ पे बहुत गुस्से में बोल रहे हैं गवर्नर जी. तुम में से दोनों मूर्खों में से कौन सा मूर्ख था जो गेट तक छोड़ के आया था इवेंट्स को, कि पता नहीं चला तुम्हें? तो मोरॉन्स होता है स्टूपिड्स. नो डाउट द मीनिंग. कहते तुम दोनों मूर्खों में से कौन सा मूर्ख ऐसा था जो उसको मेन गेट तक छोड़ के आया था और जिसने सी ऑफ किया था इसको. आई थिंक you should be able to recognize this fact. मुझे बताने की जरूरत नहीं, already we are just spending limitless time for this particular chapter. तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया था. किसने क्लियर किया था? यू हैव टू लुक एट गवर्नर जो हाईलाइट कर रहा है कि कौन सा मूर्ख था, कौन से बेवकूफ था तुम दोनों में से जो सी ऑफ करके आया था. पता नहीं चला तुम्हें कि कौन बाहर जा रहा है, इवेंस बाहर जा रहा है या मिकलरी बाहर जा रहा है. तो अब देखिए स्क्रिप्चर में नया अपॉइंटेड पर्सन था, न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर था, उसने कहा कि मैं ही छोड़ के आया था सर. जस्ट लाइक यू टोल्ड मी, कहता जैसे आपने इंस्ट्रक्ट किया था सर कॉल करके कि मैं ही छोड़ने जाऊं. अब ये देखिए, अब यहाँ पे गवर्नर हैरान होगा, मैंने कॉल किया बिकॉज दैट कॉल वाज फिक्टिशियस. जो कॉल करवाया गया था कि बुलाया था फटाफट जैक्सन ने कि हाँ स्टीफन इधर आ, गवर्नर की कॉल है, तो वो गवर्नर की कॉल नहीं थी, दैट वाज फिक्टिशियस कॉल. और जिसमें हाईलाइट किया था कि स्टीफन जी सी ऑफ करके आए किसको? मिकलेरी को. जस्ट लुक एट What? Just like I told you, you said, what the hell? कहते क्या बताया था मैंने? मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, यहाँ पे गवर्नर की कॉल नहीं थी. देखिए, you are able to understand this particular text very easily. That call was fictitious call, जो हाईलाइट कर रही थी कि ये स्टीफेंस की ड्यूटी है कि वो सी ऑफ करके आएगा जब पेपर के बाद किसको? मिकलेरी को. पर ऐसी इंस्ट्रक्शन कोई नहीं दी थी गवर्नर ने, ये तो चाल थी, ये एक हॉक्स था, ये एक नेगेटिव यानी फेक कॉल थी. आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. कहते सर आपने तो कॉल किया था. यहाँ पे गवर्नर बहुत इरिटेशन में कहते मैंने कोई कॉल नहीं किया था.
wanted to highlight that particular point. तो बहुत हार्श लैंग्वेज यूज की गई है, इडियट तक वर्ड यूज किए गए हैं किसके द्वारा, गवर्नर। कहते हैं उस टाइम पे तो मैं सेक्रेटरी जनरल एग्जामिनेशन का था, उससे बात कर रहा था, मैंने wanted to highlight the fact that at that particular moment गलतफहमी में, गलतफहमी कहाँ से राइज, यानी कि जो ये कॉल थी कि हाँ स्टीफेंस छोड़ के चाहे किसको छोड़ के आए, मैक्लेरी को, दैट वाज फेक। तो यहाँ पे स्टीफेंस वाज फीलिंग वेरी अपसेट, उसको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसको रिव्यू किया जा रहा है, उसको डांट पड़ रही है। तो यहाँ पे जैक्सन को डांटेंगे गवर्नर जी, you have to look at this paragraph. Well, I will tell you something, Jackson, your skull's empty. तो एक बात बताऊं जैक्सन, you are brainless. Skull's empty का मतलब होता है brainless fellow के लिए यूज किया जाता है, कहते हैं खाली ब्रेन है तेरा, you are not able to think properly, absolutely empty, कहते हैं तेरा जो ब्रेन है is zero. Jackson was spent 2 hours in advance of the previous evening, and it was Jackson who had confidently reported that there was nothing hidden away there, nothing at all. जैक्सन तेरे को मैंने ड्यूटी लगाई थी ना कि सेल में कुछ भी नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए जिसको यूज करके, मिस यूज करके यानी इवेंट्स नेगेटिविटी क्रिएट करे। यहाँ पे गवर्नर जी कह रहे हैं इवेंट्स ने छुपा ली ना चीजें, छुपाई हुई थी ना, क्योंकि उसकी सेल में थी अ फॉल्स बियर्ड, नकली दाढ़ी, एक स्पेक्टिकल्स, नकली जो स्पेक्टिकल्स होते हैं डिस्गाइज रूप धारण करने के लिए, अडॉक कॉलर जो वर्ड है क्लरिकल कॉलर के लिए इनफॉर्मल वर्ड यूज किया गया है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द क्लरिकल पैराफर्नैलिया होता है, छोटी छोटी चीजें, बट आल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन व्हिच Miller is such a terrible blow. तभी तो ये बेस बदल के निकला ना, उसने नकली चीजें यहाँ रखी, यानी नकली दाढ़ी, नकली आर्टिकल्स, ओके, जो फिजिकल आउटलुक थी और इवेंट्स की बिल्कुल अलग थी। कहते हैं उस रूप में आया कैसे, इसका मतलब सामान पड़ा था ना उसकी सेल में, और तुम्हें मैंने जैक्सन बोला था कि उनकी जो सेल बिल्कुल खाली करो, और भी कुछ वेपन भी था जिससे कि उसने मैक्लेरी पे ये जोर से अटैक किया। पॉइंट यहाँ पे जो एपिसोड जो है, you are able to observe the attitude of governor was very negative, he was very arrogant. To look at the way of the duty done by Jackson and Stephens. तो प्रिजन वैन आ जाती है, backed alongside, but governor made no immediate move. He looked down again at the last line of the German. Immediately कोई एक्शन नहीं लेते गवर्नर जी उस वैन को देख के भी, you have to look at this paragraph. He looked down again at the last line of the German to the Haddington roundabout where you go straight over and make your way to New Graven. New Grave. Where on the earth? It was probably a cold word, or and that, then it hit him. Newbury. Oh yes, Newbury. It's a pretty big sort of place, but confused and gone. Governor जी इस पॉइंट को देखे confused to look at that particular point जो जर्मन में लिखा हुआ है कि इस रास्ते से यहाँ तक जाना है, और न्यू ग्रेबन तो वो समझ नहीं आ रहा उनको, फिर एंड में उनके ब्रेन में आता है कि न्यूबरी की बात हो जाएगी की जा रही,
Look at page 84. So he wrapped out his orders to driver, sent Allen's police station and step on it. Take Jackson and Stephens here, and when you get there, ask the bell, Chief Inspector Bell. Got that? अब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो जो वैन ड्राइवर था, पुलिस वैन ड्राइवर था, कि यहाँ पे जाइए, इस स्टेशन पे जाना है, इस पुलिस स्टेशन पे जाना है. स्टेप ऑन इट होता है जस्ट मूवमेंट, यहाँ पे जिस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसका ये मतलब है. तो वैन जो गेट देयर आस्क फॉर बेल, कहते जहाँ जब वहां पहुंचोगे बेल को की इंक्वायरी करना, बेल से मिले, चीफ इंस्पेक्टर बेल. गुड दैट. So you are able to look at this particular point. He leaped the stairs to his office 3 got bell on the phone immediately. तो फोन पे बात की उन्होंने बेल से, वो भी एक पुलिस ऑफिसर है, and put the facts before him. We will get him, sir, said Bell. Well, we will get him with a bit of luck. तकदीर में होगा तो हम उसको ढूंढ लेंगे. यानी कि बेल यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहे हैं किसको, गवर्नर को. तो गवर्नर जी अब बैठ जाते हैं, बहुत इरिटेशन में होते हैं. तो जस्ट स्मोकिंग lit a cigarette. एक गॉड्स बट्टा ब्यूटीफुली लेड प्लान इट हैड. और सोच रहा है कितना जबरदस्त प्लान बनाया हुआ था बाहर निकलने का. कितना क्लेवर है इवेंट्स, कितना क्लेवर था. साथ में केयरलेस भी कितना था कि क्वेश्चन पेपर ही छोड़ गया. यहाँ पे गवर्नर जी जो नेक्स्ट एपिसोड आज का कर रहे हैं, गवर्नर just thinking, अपनी रीजनिंग पार्ट यूज करके वो जितना भी एक्शन एंड रिएक्शंस हुए हैं उसको सोचे. Almost all of them. And that's why very shortly Mr. Clever Vance would be back inside doing this once more. कितने क्लेवरली काम किया इसने बंदे ने, यानी कि इवेंट्स ने. क्वेश्चन पेपर छोड़ गया, एक गलती उसने की है. was thinking and thinking. जो एकदम से फोन आता है जब वो सोच रहे होते हैं. Superintendent Carter informed him that McClary had spotted Evans driving off along Elsfield Way. Got the number of the car already. कहते रास्ते में हमें दिख गया है. जब हम एल्सफील्ड रास्ते में जा रहे थे, यानी कि यहाँ पे कार्टर जी इन्फॉर्म कर रहे हैं टेलीफोनिकली गवर्नर जी को कि हमें वो दिखी है उसकी गाड़ी. किसकी? यानी जो भागा हुआ पर्सन था एल्सफील्ड की तरफ. कहते देखा हमने गाड़ी का. दे गोट द नंबर ऑफ द कार ऑलराइट, नोट कर लिया. कहते हमने नंबर एंड चेस इमीडिएटली, और उनका पीछा भी करने की कोशिश की है लेकिन कर नहीं पाए. पता नहीं जो उसकी गाड़ी जा रही थी, यानी कि वैन्स की, जो यानी उस टाइम उसको वैन्स माना जा रहा है कि जो भाग गया होता है प्रिजन में पेपर के बाद. तो कहते हेडिंगटन की तरफ जा रहे थे, तो हमें पता ही उसकी गाड़ी पता नहीं कहाँ चली गई. He must have doubled back into the city. और doubled back होता है कि एक रास्ते से निकल के जाना फिर दोबारा वही वापस आना. Note down the meaning of doubled back, dear students. अगर हम जाते हैं और फिर हम वापसी उसी रास्ते में आते हैं, लगता है कि कहते हैं कि वो वापसी उसने अपनी गाड़ी जो थी अरेंज करवानी थी कि बैक रूट में. नो सर द गवर्नर क्वाइटली, नो ही इज ऑन हिज वे टू न्यूबरी. कहते तो गलत कह रहा है कार्टर, वो वही है अपने न्यूबरी के रास्ते, न्यूबरी की तरफ गया होगा. तुम गलत रास्ते में. ही एक्सप्लेन्ड हिज रीजन फॉर बिलीविंग सो. सारा रीजन बताया कि मैंने पढ़ लिया. तुमने जो जर्मन में लिखा हुआ था उसमें क्लियर था कि न्यूबरी की तरफ जाना. कहते वही गया होगा. एंड लेफ्ट इट एट दैट. इट वाज अ पुलिस जॉब नाउ, नॉट हिज. अब तो पुलिस का काम रह गया, बाकी उसका जस्ट अनदर गुड फॉर अ गिगल. गरीबल को है ना, दैट वाज ऑल. एक बार ये वाला वर्ड जो यूज किए गए ना, फन क्रिएट, फन मतलब यानी मूर्ख बना गया के लिए यूज करने गए कि एक बार फिर गवर्नर को बेवकूफ बना गया हो. बस ये वर्ड. By the way,
Carter, I hope you managed to get McCleary to the hospital all right. तो अब यहाँ गवर्नर जी कह रहे हैं कि हॉस्पिटलाइज करवा दिया होगा उसको. यस, इस पॉइंट पे वो इंक्वायरी कर रहे हैं गवर्नर जी कि उस बंदे को हॉस्पिटलाइज करवा दिया गया होगा. I think you are able to look at this particular point. तो अब इस पॉइंट पे अब आप अपने आप स्टडी करोगे. I'm just summing up the things. तो वो कॉल करके पूछेंगे गवर्नर जी जब उनको कंफर्मेशन हो जाएगा कि रेड क्लिफ हॉस्पिटल में उनको उस बंदे को जो इंजर्ड पर्सन था उसको एडमिट करवा दिया गया है. वो इंक्वायरी करेंगे, वो कंफर्मेशन के लिए कॉल कर रहे हैं हॉस्पिटल में गवर्नर. और कॉल करने के बाद उनको पता चलता है कि ऐसे कोई इंजर्ड पर्सन आया ही नहीं जो पार्सन था. यानी जैसे ही गवर्नर कार्टन ने कंफर्मेशन लिया और कंफर्मेशन लेने के बाद उन्होंने हाईलाइट किया गवर्नर को. क्या हाईलाइट किया उन्होंने कि वो बंदा जस्ट मूव्ड अवे इमीडिएटली. ये हॉस्पिटलाइज उसको करवा दिया गया है. हॉस्पिटल में इंक्वायरी करके पूछा, इंक्वायरी किया गवर्नर ने खुद. उन्होंने कोई ऐसा बंदा यहाँ हॉस्पिटलाइज्ड नहीं हुआ. I think you are able to understand up to this particular point. इस पॉइंट तक आपको क्लैरिफिकेशन हो चुकी होगी. कि क्लैरिफिकेशन कर दिया इन्होंने. You have to look at think जो हॉस्पिटल में रिसेप्शन काउंटर पे जहां उन्होंने फोन किया था गवर्नर जी ने, तो वहां से आंसर रिप्लाई क्या है कि कोई इस नाम का पर्सन जो था हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ. I think you are able to look at up to this particular point. तो अब शक की सीमा जो थी वो क्रॉस हो गया. इनका you will have to look at this particular point. इस पॉइंट पे जाके गवर्नर जी का जो I think doubt था that was on the top level. क्यों टॉप लेवल पे गया ये जो डाउट था? You should be able to look at that particular point. क्योंकि क्लैरिफिकेशन हुई कि हॉस्पिटल में कोई ऐसे नाम का पर्सन है. अगर वो रियल सेंस में बेटे इंजर्ड था तो ही मस्ट बी हॉस्पिटल. क्योंकि अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए कार्टर ने जितना भी भेद उससे लेना था कि इवेंट्स कहाँ होगा, उसकी कंडीशन को देखते हुए, उसकी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए उसको हॉस्पिटलाइज करवा दिया था. लेकिन गवर्नर वाज सरप्राइज्ड टू लुक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जब उनको पता चला कि हॉस्पिटल में वो नहीं है. राइट क्लिफ हॉस्पिटल में जब गवर्नर ने कॉल लगाया उनको क्लियर हुआ कि वो नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं. I think you will be able to look at this particular point in a very sincere way. इस पॉइंट पे कोई गुंजाइश रही नहीं डाउट की इनकी गवर्नर की कि ये डिसऑनेस्टी का केस नहीं है. पहले तो उनको फिर भी शक था कि नहीं, ये हो सकता है कि उनकी गलत फहमी हो. इस पॉइंट पे आके 100% clear that the real drama was played by Vance. So I think you're able to look at this particular point up to this particular. नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं गवर्नर जी क्या करते हैं. You will have to look at the things. आप इसी चैप्टर में नेक्स्ट स्टेप में देखोगे. You will be able to look at the next step. गवर्नर जी को जानकारी मिल गई होती है कि एक यानी कि होटल के बारे में कि होटल में गोल्डन लॉयन होटल just make personal inquiries. इस जानकारी के बाद गवर्नर जी खुद जाते हैं. जस्ट मूव. वो क्या सर्च करने जाते कि वो कहाँ होगा. वो मिकलरी के फ्लैट में जाते हैं. बेसिकली सबसे पहला उनका असाइनमेंट ये होता है जब शक की सीमा क्रॉस हो जाती है वो मिकलरी के फ्लैट में जाते हैं. और वो फ्लैट में जाके क्या देखते हैं. You should be able to look at it. क्या देखते हैं वहां पे
असली मैक्लरी होता है उसको तो बांध रखा होता है। बाहर से लोग क्या होता है कि वो बाहर जा ही ना सके। I think you are able to understand up to this particular point. यानी जब गवर्नर जी इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो सबसे पहले वो फ्लैट पे जाते हैं मैक्लरी के। वहां जाके देखते हैं वो सरप्राइज कि जो असली इन्विजिलेटर था, जो असली मैक्लरी था, वो तो घर के अंदर ही बंधा हुआ। उसको 8:15 पे बाहर से कोई लोग कर गया था, उनको बांध के बंदी बना के उन्हीं के घर में, उन्हीं के फ्लैट में, ताकि वो इन्विजिलेशन ड्यूटी अपनी ना कर पाए। और उनका ब्रीफ केस जो था पेपर वाला, जो भी असाइनमेंट से पेपर से कंसर्न, इन्विजिलेशन ड्यूटी से कंसर्न कोई ले गया था। तो इससे पता चलता है कि जो इन्विजिलेटर था फिक्टिशियस था। I think you are able to understand up to this particular point because today we are closing this chapter. We are very clear. So, very surprising. देखिए कितना क्रिटिकल नोट है। You will have to look at. कि जिस पर्सन को वो इन्विजिलेटर समझ रहे थे वो नकली था, वो असली नहीं था। असली इन्विजिलेटर को आने के टाइम से पहले ही जो भी कॉन्स्पिरेसी रची हुई थी, जो भी प्लान आउट किया हुआ था इवेंट्स ने, उसको उसी के घर में बंद कर दिया ताकि वो निकल ही ना पाए। तो जो ब्रीफ केस था, तो उसका असाइनमेंट वाला ब्रीफ केस था जिसमें क्वेश्चन पेपर था, आंसर शीट थी, बाकी मटेरियल था, वो ले लिया गया। I think you are able to understand up to this particular point. अब तो ड्रामा आपको क्लियर हो चुका होगा कि हर चीज नकली थी, हर चीज। ये बंदा, इस पॉइंट में क्लियर करना चाहती हूँ, इवेंट्स श्रीउड फेलो जो उसको कोचिंग देने आ रहा था, यानी कि उसने 6 or 7 months earlier to his examination just looked at the teacher जो उसको प्राइवेट कोचिंग दे सके। वो कोचिंग नहीं देता था, वो सिर्फ प्लान आउट बनाते थे ये बैठ के कि कैसे जेल को तोड़ना है, क्योंकि वेरी श्रीउड फेलो इन्विजिलेटर, जो इन्विजिलेटर था वो नकली इन्विजिलेटर, असली को तो बंद कर दिया था ताकि अपने घर से निकल ही ना पाए। किसी भी बुक में नहीं लिखा होगा बेटा अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो आपको एनर्जी वेरी अपसेट। तो नेक्स्ट स्टेप पे होटल बताता है कि गोल्डन होटल में क्या होगा। You should be able to look at it and already have. तो गवर्नर जी खुद होटल में जाएंगे, you will be able to look at. तो जैसे वो होटल में जाते हैं, is able to look at कि वो जो भी उसका रूम नंबर होता है, whatever उसने जो भी उसने रूम अवेल कर रहा होता है, जिसको यूज कर रहा होता है होटल का, तो वहां से इंक्वायरी करके गवर्नर जी उन्हीं के रूम में चले गए, उसी के रूम में। उस टाइम पे वो अपने रूम में नहीं था। फ्री मैन की तरह वो घूम रहा था। यानी इस पॉइंट को क्लियर कर दूं, जो नकली ट्यूटर एंड नकली इन्विजिलेटर और जो पुलिस वैन थी उसमें भी उसी के दोस्त थे, सब कुछ नकली था। एवरीथिंग वाज फिक्टिशियस। और अगेन ही वाज फ्री मैन। 4th टाइम जेल को उसने तोड़ के वो भाग चुका था। तो जैसे गवर्नर जी होटल गोल्डन में गए, he was able to observe the point. इसको जरा सम अप कर रही हूँ, you should be able to read line by line. फिर भी कोई डाउट और क्वेरी हो, I will be there. Because today the last lecture, इसको जरा समझ लेना। ये मैंने सारा जिस चैप्टर का आपको बता दिया है, अब आपको बेस थ्योरी में बता रही हूँ कि बेसिक क्या था। Everybody was fictitious. पता ही नहीं चलने दिया चाल जो चली किसने, इवेंट्स ने। पहला पॉइंट मैंने कहा ना कि जो कोचिंग देने की बजाय, पढ़ाने की बजाय सिर्फ प्लान बनाते थे कि जेल को कैसे तोड़ना, कैसे 4th टाइम सक्सेसफुल होना है उसने जेल को तोड़ने में, जेल से भागने में। तो सारी प्लान आउट करने के बाद वो नकली उन्होंने अरेंज किया,
यानी कि इन्विजिलेटर, असली इन्विजिलेटर को उन्होंने 8-15 पे बंद कर दिया, उसी के घर में लोग लगा दिया, उसको बंदी बना दिया अपने ही घर में, बांध दिया उसको रस्सियों से, उसके मुंह को बांध दिया ताकि वो किसी को इन्फॉर्म ना कर पाए. I think you are able to read up to this particular point very easily, very easy. Then तो मिकलरी के फ्लैट में जाने के बाद जब उन्होंने इंक्वायरी की, गवर्नर वाज एबल टू गेट द रियल थिंग. बहुत हैरान हुए कि क्या. अब होटल में जाके देखा, अगर तो अपना सैर करने गया हुआ था होटल से, तो उसको डर ही नहीं था कोई. चिप्स खा रहा था, एंजॉय कर रहा था, ही वाज जस्ट एंजॉयिंग, वेरी हैप्पी. जैसे एंट्री करता है अपने रूम में, तो गवर्नर को देखता है. गवर्नर सरप्राइज. तो कहते कि आप गवर्नर साहब, आप कैसे आ गए? Surprised to look at. अब एंड पार्ट, जो लास्ट पार्ट है, वो पूरा देखोगे कि दोनों आपस में बातें कर रहे होंगे होटल के रूम में. गवर्नर जी इंक्वायरी कर रहे हैं कि हाँ कैसे पहुंचा, तो ब्लड कहाँ से आया, ये इतने इंजर्ड, ब्लड क्या पिक ब्लड था. रबर ट्यूब में जो मैंने कहा था कि फाइल्स है, वो फाइल्स नहीं थी बीमारी, the semi-inflated rubber tube थी, that was full of blood of pig का blood. और ये क्लियर हो चुका है कि जो भागने वाला था वो, you should be able to look at that thing, वो events जो यानी कि मिकलरी को भेज दिया गया था अपसेट्स पे, इसमें स्टीफेंस की कोई गलती नहीं. मिकलरी को पेपर देने के बाद जो भी मिकलरी ने बनाया हुआ था, it was just given see off in a final, तो भेज दिया गया था. लेकिन अब यहाँ पे बड़े खुशी खुशी बता रहे हैं गवर्नर को. एंड पार्ट देखे हैं आपको, क्योंकि आप लास्ट में देखना कि दे आर हैविंग वेरी आई थिंक लिबरल डिस्कशंस की. गवर्नर पूछ रहा है कि यार तो ओवर प्लाननेस की सीमा क्रॉस होगी तो कहते हैं पहुंचा ऐसे पॉइंट्स पे. वो सारी बात बताता है कि कहते हैं कि ब्लड कहाँ से आया, तो इतना इंजर्ड दिख रहा था. कहते ये जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ, मैंने ड्रामा करने के लिए जो मेरी बॉबल हेड थी उसने बहुत बड़ा काम किया, तभी तो मैंने डिमांड की थी कहते उसकी. तो मैंने वो रबर ट्यूब में जो ब्लड था वो मैंने सारा अपने सिर पे डाल दिया. I was not injured. He wanted to highlight that particular point. तो सारे पॉइंट वन बाय वन को हाईलाइट कर रहा है कि इस तरीके से मैंने क्लेवरनेस खेली. इन्विजिलेटर नकली, ट्यूटर नकली, वैन नकली, and again the things were very negative. अब उसको जो गवर्नर है, he was very irritated. यहाँ पे इस लास्ट स्टेप में आप देखोगे वो कहेगा हैंड्स अप, कि अब तो तेरे को कोई नहीं बचा सकता. तो जहाँ वो हैंड्स अप उसको कहेंगे, तो कहते हैं कि अब तो फिर दोबारा you will be in prison cell. कोई बात नहीं, वो जाने के लिए भी तैयार हो जाता है. और जो वैन होती है, जो वैन में वैन ड्राइवर और जो ऑफिसर्स होते हैं वो नकली होते हैं उसी के, उसको जेल में और एचएम प्रिजन में ले जाने की बजाय फिर उसको फ्री छोड़ देते हैं. बस फ्री वंस अगेन, वेरी हैप्पी, just very successfully able to achieve his goal in a very systematic manner. So dear students, you are able to understand every step of this particular chapter, and I think you are able to look at the concluding part. बड़ा ज़्यादा suspense है इसके concluding part में, and there is no doubt in that. तो जो last part है, we should study it line by line. Otherwise, I think 70% of the chapter is already highlighted line by line. बाकी मैंने जो sum up करके बताया है, you should be able to read it, and with this you are able to highlight. Again, I am highlighting the overview of this, and moral of this particular story you should be able to look at. So if we look at
the overview of this particular chapter, in a nutshell, we should be able to look at prisoner, broken the jail thrice, wanted to appear for examination because he wanted to upgrade his qualifications. And ultimately, he was given permission. So, tutor was appointed for teaching him. So, next step में you will find the things systematic पे पेपर हो गया. कहीं पे भी suspense highlight नहीं किया गया उस point तक. No suspense is highlighted at up to that particular point. जो suspense highlight किया गया है किस point पे किया गया है जाके जब inquiry किया हुआ. गवर्नर की इंक्वायरी के बाद things were highlighted in a very clear way, in a very systematic way. असली जो थी, असली जो भेद थे, जो असली सस्पेंस था, जब वो मिकलरी के फ्लैट में गए हैं, गवर्नर जी was able to recognize. फिर एंड में इसने हसस की सारी बातें गवर्नर को बताई, इवेंट्स ने क्या मैंने ऐसे से क्या, ये कोटेशन है ना, practice makes a man perfect. So I consider it wrong. And I want to just highlight the same quotation in amended form. Dear students, only perfect practice makes a man perfect. Fictitious practices makes a person fictitious. या उसके लिए तो beneficial था events के लिए सब कुछ, पर think गवर्नर के लिए everything was contrary. और एंड में जब कहते हैं कि हैंड्स अप, अब तो तुम्हें कोई भी खाली मतलब भेज नहीं सकता, अब तो दोबारा अरेस्ट होगी. अब देखिए उस पर्सन ने जो वैन थी वो भी फिक्टिशियसली अरेंज की हुई थी, एंड ही वाज फ्री फेलो, एंड ही वाज सक्सेसफुली एबल टू ब्रेक द प्रिजन डोर्स 4 times. It was the 4th attempt. So I think if we look at moral, तो इस चैप्टर में कोई खास नहीं है. If we look at the moral of this story, there is no moral in it. बाकी ये लेसन जरूर हमें हाईलाइट होता है कि ये इंसान जो इवेंट्स है, जो अपना जो कैमरा था हमेशा उसी चीज में, अपने मेंटल जो साइकोलॉजी का कैमरा था, अपनी साइकोलॉजी थी, चला क्यों नहीं लगा, एंड वाज वेरी परफेक्ट इन दैट. और वो ऐसा एक्सपर्ट बन चुका था जेल को तोड़ने के लिए, इवन नो गवर्नर वाज एबल टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट. So I think you are able to understand up to this particular point. With this lesson is over. There is no, I think there is no doubt, no query. Still, in case of any doubt or query, you just write to me. I will be available for you people. And the PDF, that is question answer PDF, will be sent by tomorrow. You should prepare it. This chapter is also a part of your curriculum for your pre-board exam. So I think with this,